Hello students, welcome to our new class. Today's topic is bookkeeping. Bookkeeping refers to recording of business transactions in books of accounts. Bookkeeping is the first part of accounting. In this we include all those transactions which are related to trade and can be measurable in money value. A business recognizes those transactions which can be measured in money term. Non-monetary and the transactions which cannot be measured in money terms are not the part of bookkeeping. Bookkeeping is a routine work and this work can be done by lesser experts or clerks. This work does not require any special skills and knowledge. That is the reason to say bookkeeping is the first part of accounting. Bookkeeping and accounting both are important factors for accountancy. All business transactions are written in books of accounts in bookkeeping, so it is called first step of accountancy. And after the completion of this, the work of accounting starts. So there are some difference. The difference are bookkeeping and accounting. Bookkeeping is a primary stage, but accounting is a secondary stage. It identifies the financial transactions of business, but accounting summarizes the classified transaction. Measuring the transactions in money terms and records them into books of accounts. जो हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं वो बुक कीपिंग कहलाता है, जबकि एनालिसिस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू नो द रिजल्ट ऑफ business activities. The next one is the main objective is to maintain systematic records of identified transaction in the books of account. Bookkeeping क्या कर सकता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये एक सिस्टमेटिक जितने भी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी उसको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, जबकि जो हमारा अकाउंटिंग होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें जो फर्म या कंपनीज है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है और उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं. जो हमारा बुक कीपिंग होता है इट इज़ अ रूटीन वर्क, सो इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स. कि जो बुक कीपिंग है उसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स की नीड नहीं होती है, इसे कोई भी पर्सन कर सकता है. लेकिन जो अकाउंटिंग होती है उसमें एनालिटिकल प्रोसेस होता है, तो इसके लिए हमें स्पेशल स्किल्स पर्सन्स की नीड होती है. जैसे हमें अकाउंटेंट हुआ, सीनियर अकाउंटेंट हुआ, ठीक है, मैनेजर्स हुए, तो इसमें अकाउंटिंग की नीड होती है. अ नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन कैन डू दिस वर्क. बुक कीपिंग कोई भी नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन कर सकता है, सिर्फ इसमें ट्रांजैक्शन लिखने होते हैं. लेकिन अकाउंटिंग जो है उसके लिए हमें स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन की नीड होती है, जैसे कि एक अकाउंटेंट की. नेक्स्ट वन इज इट इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो हमारा बुक कीपिंग होता है, और जब हमारी बुक कीपिंग एंड होती है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है. तो अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स. तो ये डिफरेंस था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कि क्या डिफरेंस होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में. अब आते हैं अकाउंटिंग की कुछ फील्ड और सब फील्ड्स भी होते हैं, टाइप्स होते हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं. तो देखते हैं अकाउंटिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सबसे पहले आते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग. द बेसिस पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग is the recording of business transactions, classifying, summarizing, and interpreting them by preparing trading and profit and loss account and getting the financial position of the firm by balance sheet, so that useful information can be communicated to various users such as society, government, shareholder, creditors, customers, etc. It is beneficiary for all types of business institutions. In many institutions like a company, it is legally compulsory also. Second one is cost accounting.
The main objective of this branch is to calculate cost per unit of the product or services with information provided by the enterprise. In this branch, we estimate the cost and compare it with actual cost so that the cost can be reduced and controlled. Low cost can increase the प्रॉफिट वैल्यूम ऑफ द फर्म. कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ काम आती है जहाँ कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको प्रोडक्शन में कितना टाइम लग रहा है, कितनी उसकी कॉस्ट आ रही है. कॉस्ट कहते हैं किसी चीज़ को बनाने की एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, इसके लिए अकाउंटिंग की एक फील्ड होती है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. थर्ड टाइप अकाउंटिंग का जो है उसे क्या है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट ऑपरेट्स द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज मैनेजमेंट रिक्वायर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in such a way that management can fulfill its responsibilities. The main work of management is decision making. The success of decision is based on useful information, collection of information and analysis, and using them in decision making is called management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यही काम है कि एक अच्छे से डिसीजन मेकिंग लेने में वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसे अप्लाई करते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है, एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छे से चल सके. तो ये जो तीन थी हमारी फील्ड्स और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग थी. स्टूडेंट्स, एक और टाइप होती है फोर्थ, सोशल अकाउंटिंग, जो मैं आपको इसमें अवेलेबल नहीं करा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल अकाउंटिंग क्या होती है. अब बिजनेस गेट रिसोर्सेज फॉर द बिजनेस फ्रॉम सोसाइटी लाइक कैपिटल, रॉ मटेरियल, ह्यूमन लेबर एक्सेट्रा. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू वर्क फॉर द सोसाइटी also. The report which shows to what extent social work is done by business is called social accounting. तो ये हमारे अकाउंटिंग के टाइप्स और सब फील्ड थी. फोर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फोर्थ इज़ सोशल अकाउंटिंग. इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है. थैंक यू, गुड बाय.